Good morning to all of you. In the previous class, we have discussed about the classification of poison. Okay. In that class, we have seen that our classification of poison is based on the mode of action. So, on this basis, the first type of poison was the corrosive poison. The first type of poison was the corrosive poison, whose function is ulceration and inflammation. Okay. In that part, in that part, the poison was classified into the three types. That was first was acid, alkali, and आपका metallic salt. Acid, alkali, and metallic salt. Okay. In that case, the acid was divided into the strong acid, or we can say the acid was divided into the organic acid and inorganic acid. In next type, that was the irritant poison, in which the irritant poison was divided into the three types. The first was the inorganic irritant poison, second was the organic irritant poison, and third was the आपका mechanical irritant poison. In the inorganic irritant poison, it was divided into the two types. First was the metallic and second was the non-metallic. Organic irritant poison was divided into the two types, that was the plant या vegetable group or animal group. Next, we will proceed towards the next topic, the cerebral poison or neurotic poison. The poison which have action on the CNS, it means on the brain, on the spinal cord, is known as the neurotic poison. In that poison, we have seen that neurotic poison was divided into the three types. The first was the cerebral, spinal, and peripheral. The cerebral poison was divided into the three types, that was the somniferous, inebriants, and deliriants. In the spinal poison, there was gelsemium and conium, and in the peripheral poison, there was curare. Okay. So next we will see about the cardiovascular poison. Cardiovascular poison. Poison having action on the blood and the blood vessels. The poison which affects the circulatory system of the body is known as the cardiovascular poison. एग्जाम्पल इसमें आता है आपका एकोनाइट, ओलिएंडर, डिजिटेलिस, निकोटीन, हाइड्रोसाइनिक एसिड और टोबैको. हम लोग देख रहे हैं कि सारे लगभग जितने भी पॉइजन है सबका एक स्पेसिफिक प्लेस ऑफ स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन है, और इस स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन के आधार पे आपका जो है अलग अलग टाइप का पॉइजन है. तो कार्डियोवास्कुलर पॉइजन में क्या क्या आता है आपका? एकोनाइट आता है, ओलिएंडर आता है, डिजिटेलिस आता है, निकोटीन आता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड आता है और टोबैको आता है. उसके बाद फिफ्थ टाइप का आपका पॉइजन है, दैट इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉइजन. द पॉइजन व्हिच इफेक्ट्स द GIT, mucosa and submucosa of the GIT, is known as the gastrointestinal poison. तो इसमें फूड पॉइजनिंग में किसी भी प्रकार का फूड पॉइजनिंग अगर होता है तो उसमें आपका अगर कोई बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है तो कौन सा होता है? आपका GIT होता है. उसके बाद आपका आता है पोटामिन पॉइजन. पोटामिन इज द एमाइन ग्रुप ऑफ कंपाउंड, और इसके पॉइजनिंग में भी कौन इफेक्ट होता है? आपका GIT इफेक्ट होता है. उसके बाद हम लोग देखते हैं हिपेटोटॉक्सिक पॉइजन. द पॉइजन व्हिच इफेक्ट्स द लीवर, इज नोन एज द हिपेटोटॉक्सिक पॉइजन. तो इसमें आपका फास्फोरस है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म. ओके. आप जब मटेरियल मेडिकल पढ़िएगा तो फैटी लीवर के केस में आपको फास्फोरस देखने को मिलेगा. ओके. तो इसका मतलब है कि फास्फोरस हैविंग वेरी गुड एक्शन ऑन द लीवर. नेक्स्ट इज द नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन. द पॉइजन व्हिच इफेक्ट्स द urinary system, excretory system और nephron, kidney is known as the nephrotoxic poison. और इसमें आपका आता है mercury, oxalic acid और cantharides. Cantharides are the Spanish fly, which are insects, and our medicine canthris is made up of cantharides.
और कैंथ्रिस का आप जानते होंगे, कैंथ्रिस में बर्निंग यूरिनेशन इज मार्क, बर्निंग एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज मार्क, और इस केस में यूटीआई के केस में, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के केस में आपका कैंथ्रिस का बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो ये सजेस्ट करता है कि कैंथ्रिस का एक्शन कहां पे है, आपका किडनी पे है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी एक्सफाइक्सिएंट। Next we will see another type of poison, that is the asphyxiant poison. The poison which cause asphyxia. What do you mean by asphyxia? Asphyxia means difficulty in breathing, difficulty in taking oxygen is known as the asphyxia. Asphyxiant. So there are lots of poison which cause difficulty in breathing, difficulty in uptake of oxygen, including कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वार गैसेस। किसी भी युद्ध के समय में जो गैस का यूज किया जाता है क्या करता है, वो आपको एक्सफाइक्सिया कॉज कर देता है, जिसके कारण पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है। सीवर गैसेस, दिस कम्स अंडर द एक्सफाइक्सिएंट पॉइजन। अब हम लोग एक अलग टाइप के पॉइजन की तरफ चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि सिस्टम के बेस पे कौन सा आपका पॉइजन क्या एक्शन था, उसके बेस पे क्लासिफाई कर दिया। एक मिसलेनियस है, एक मिसलेनियस ग्रुप ऑफ पॉइजन है जिसमें आपका बहुत सारा पॉइजन आएगा, और चूंकि सबका अपना अपना अलग अलग एक्शन है, तो उसके बेसिस पे आपका पॉइजन को क्लासिफाई किया गया। तो नेक्स्ट इज द मिसलेनियस। इसमें जितने भी पॉइजन्स के बारे में पढ़ेंगे, सबका अपना अलग अलग आपका एक्शन है, हैविंग डिफरेंट, वाइडली डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला आता है दैट इज द एग्रोकेमिकल। वैसे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज होते हो आर नोन एज द एग्रोकेमिकल्स। All of we know that our whole agriculture system is based upon the chemicals. We use fertilizers, we use pesticide, we use herbicides, we use rodenticide. जो भी पेड़ पौधे पे छिड़काव करते हैं केमिकल का, फर्टिलाइजर डालते हैं, सब केमिकल है। तो उस केमिकल्स को हम लोग कहते हैं एग्रोकेमिकल्स। तो कभी कभी क्या होता है कि पेस्ट्स को मारने के लिए, कुछ कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड, दैट इज नोन एज द पेस्टिसाइड। इसमें क्या क्या आता है आपका पेस्टिसाइड में, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट और ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट और ऑर्गेनोक्लोरीन। नेक्स्ट टाइप का आपका आता है फ्यूमिगेंट्स। ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर वी यूज टू स्प्रे सम केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड वेपर। वी यूज टू स्प्रे द केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ गैस और वेपर, दिस इज नोन एज द फ्यूमिगेंट्स। ओके, तो वैसे केमिकल्स जिनका हम लोग गैस और वेपर्स के रूप में छिड़काव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्यूमिगेंट्स, और इसका एग्जांपल होता है अल्फास और इथाइलिन ब्रोमाइड। इथाइलिन अल्फास और इथाइलिन डाइब्रोमाइड। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं रोडेंटिसाइड, यानी रोडेंट्स को मारने के लिए, जैसे रैट्स को मारने के लिए, छुचुंदर को मारने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रोडेंटिसाइड। थर्ड इज द रोडेंटिसाइड। इसमें क्या आता है आपका रोडेंटिसाइड में, दैट इज द डाइथाइलिन। इसका एग्जांपल होता है रोडेंटिसाइड का थैलियम सल्फेट, और आपका आता है इसका जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका एक नेक्स्ट टाइप का दैट इज द हर्बिसाइड्स, अनवांटेड प्लांट्स को, खरपतवार नाशक उसको कहते हैं। अनवांटेड वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए जो केमिकल, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल का यूज होता है दैट इज नोन एज द हर्बिसाइड। इट इंक्लूड्स paraquat and bromoxil. Paraquat and bromoxil. ओके, नेक्स्ट ये तो था आपका एग्रोकेमिकल। कुछ अब हम जाते हैं ड्रग्स ऑफ डिपेंडेंस पे। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिन पे हम लोग की डिपेंडेंसी पड़ जाती है, जो हम लोग का आदत में सुविधा हो जाता है। जैसे ट्रैंक्विलाइजर होता है जो आपका एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। इफ ए पर्सन टेक्स इट हैबिटली इट बिकम्स एडिक्टेड टू दैट ड्रग। आपका हेलुसिनेजर्स होता है, आपका एंटी डिप्रेसेंट होता है, तो बहुत सारा ड्रग है ऐसा। तो हम बात करते हैं ड्रग्स ऑफ डिपेंडेंस। तो मिसलेनियस ग्रुप में पहला कौन था? मिसलेनियस ग्रुप में पहला था आपका एग्रोकेमिकल और दूसरा था है आपका ड्रग्स ऑफ डिपेंडेंस। दूसरा है आपका ड्रग्स ऑफ डिपेंडेंस। तो इसमें आपका आता है ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट्स और हेलुसिनेजर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कुछ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो भी आपका पॉइजन का काम करता है। तो जैसे किरोसिन, पेट्रोल, ऑल आर द पॉइजनस सब्सटेंस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें आपका किरोसिन, पेट्रोल और नैफ्था, this comes also in the classification of poison. It is also the part of the poison. Next is the food poisoning. ड्रग्स ऑफ डिपेंडेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद होता है आपका फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग भी आपका एक पॉइजन का टाइप है, जिसमें आपका इसका दो सोर्स होता है। एक आपका होता है फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरियल सोर्स, और दूसरा होता है आपका केमिकल सोर्स। ओके, उसके बाद आपका आता है अदर्स ग्रुप में एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, यानी वैसे कुछ दवाइयां जो आपको पेन को रिलीव करने और फीवर को रिलीव करने के लिए यूज होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। तो एनाल्जेसिक्स में क्या क्या आता है आपका? एस्पिरिन आता है, एंटीफेब्रिन आता है और फिनासिटीन आता है। तो in this classification we have seen that in the classification of poison we have seen that the source of poison is not from the other place, not from the other side, but it is among us. ये हम लोग के बीच में ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉइजन को ढूंढने के लिए हम लोग को दूर जाना है। हो सकता है कि जो हम लोग डेली यूज में जिन चीजों को यूज कर रहे हैं वही आपका सोर्स ऑफ पॉइजन है। कोई भी चीज आपकी मेडिसिन है या पॉइजन है, ये आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं कि आपका एस्पिरिन जो सर दर्द में यूज किया जाता है, फिनासिटीन जो बुखार में यूज किया जाता है, ट्रैंक्विलाइजर्स मेडिसिन, ओके, जो हम लोग डिप्रेशन के केस में, एंजाइटी के केस में यूज करते हैं, अगर उसको फॉर इंटेंशन टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट और द इंटेंशन टू ट्रीट द पेशेंट, अगर किसी हम लोग सब्सटेंस को यूज करते हैं तो दिस कम्स अंडर द मेडिसिन। अगर हमारा इंटेंशन, ओके,
अगर हमारा इंटेंशन है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को हार्म करना है, तो दिस कम्स अंडर द पॉइजन। तो सिर्फ आपका इंटेंशन, एक पर्सन का इंटेंशन इस चीज को डिसाइड करता है कि कौन सा चीज आपका क्या है, मेडिसिन है, और कौन सा पॉइजन। द इंटेंशन ऑफ गिविंग, for what purpose you are giving the particular substance. If you are giving aspirin to treat the headache of a person, it comes under the medicine. If you are giving lot amount of aspirin to harm the person, it comes under the poison. Okay, so there is only slight difference between the drug and poison and medicine, of the dose and of the intention. Okay, in the medicine we have to give the indicated dose, but in the case of poisoning we have to give the large dose. This was the classification of poison. Now we will discuss about the factors affecting actions of poison. वैसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉइजन के एक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्शन ऑफ पॉइजन. Factors affecting action of poison. हमने देखा कि पॉइजन का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है, अलग अलग प्लेस ऑफ एक्शन है, लेकिन कौन सा चीज, वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉइजनिंग के या पॉइजन के और या उसके मोड को, उसके एक्शन को इनहेंस कर सकता है. तो इसमें सबसे पहला आता है क्वांटिटी और डोज. सबसे पहला क्या आता है आपका, क्वांटिटी और डोज ऑफ पॉइजन. क्वांटिटी और डोज ऑफ पॉइजन. अगर मान लीजिए कि कोई पॉइजन है, उसका क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक्शन क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा. अगर क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम है, तो एक्शन क्या होगा, कम होगा. हाँ, वो बात अलग है कि some poisons are strong acting, they only require little amount, and some poisons are weak in nature, they require large amount to produce the effect. But here हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइजन की बात कर रहे हैं. अगर मान लो हम लोग बात कर लेते हैं कि साइनाइड पॉइजन का, ठीक है, तो साइनाइड पॉइजन जितना ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा उसका एक्शन उतना ज्यादा रहेगा, क्वांटिटी कम रहेगा उसका एक्शन कम रहेगा. हम लोग बात करते हैं एल्प्राक्स का, एल्प्राजोलाम का जो दवा है, तो क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो उसका एक्शन ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम रहेगा तो उसका एक्शन ज्यादा होगा. इसमें हम लोग दो पॉइजन के बारे में नहीं बात कर रहे, सिर्फ एक पॉइजन के बारे में कि क्वांटिटी वाइज. ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं फॉर्म और स्टेट ऑफ पॉइजन. कि हमारा जो पॉइजन है वो किस स्टेट में है. ओके, फॉर्म और स्टेट ऑफ पॉइजन. फॉर्म और स्टेट ऑफ पॉइजन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सब्सटेंस का तीन फिजिकल फॉर्म होता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. फिजिकल स्टेट. तो आपका पॉइजन भी तीन फॉर्म में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है. ओके, तो इन दैट केसेस if a particular poison is in the form of gas, वही पॉइजन अगर लिक्विड में है, वही पॉइजन अगर सॉलिड में है, तो गैस का जो एक्शन होता है वो ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद सॉलिड का होता है. सॉलिड भी आपका दो फॉर्म का होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक पाउडर्ड फॉर्म. तो जो पाउडर्ड फॉर्म वाला सॉलिड होगा उसका एक्शन ज्यादा होगा. अगर हम लोग बात करते हैं किसी पॉइजन की फिजिकल स्टेट की, तो जो गैस और वेपर वाला होगा वो सबसे ज्यादा आपका एक्ट करेगा. उसके बाद आपका आता है लिक्विड पॉइजन, उसके बाद आपका आता है पाउडर, फाइन पाउडर.
फाइन पाउडर पॉइजन, उसके बाद आपका आता है क्रिस्टलाइन पॉइजन। So on the physical basis, we see that gas poison can be in the three form: solid, liquid, and gas. And in solid also there may be two forms. First is the powder form, and second is the crystalline form. In that case, if a particular poison is in the form of gas, it will act faster, then proceed towards the liquid, then towards the fine powder poison, then it is the क्रिस्टलाइन पॉइजन। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल कॉम्बिनेशन की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की। अगर दो आपका हार्ड पॉइजन भी है, अगर मान लीजिए कि दो पॉइजन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, दो स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, अगर किसी ने दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइजन को मिला के आपस में दे दिया, एज फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। अब कोई सोचेगा कि चलो पता नहीं एक से मरे कि ना मरे, दोनों को मिला के दे देते हैं तो पक्का मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि वहां पे आपका जब आप सिल्वर नाइट्रेट और HCl को, दोनों पॉइजन को मिला के जब देते हैं तो आपका बन जाता है एक सॉल्ट, दैट इज द सिल्वर क्लोराइड, एंड इट इज द insoluble and it is the harmless. These both are harmful. Silver nitrate and hydrochloric acid are harmful, but due to the chemical combination of the silver nitrate and hydrochloric acid, ये जो आपका salt बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है, दिस इज insoluble and harmless. उसी तरीके से जब सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को आपका HCl के साथ, आप जानते हैं किंग ऑफ द एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका। अब क्या होता है कि अगर दोनों जो है अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा, और NaCl जानते हैं that is the edible salt, that is the table salt. These both are the strong poison. These both are the strong poison, but due to the chemical combination, this becomes the sodium chloride and it is the insoluble and harmless. उसी प्रकार हम लोग देखते हैं मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। मैकेनिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया आपका, एंड थर्ड इज द, अगर किसी भी पॉइजन को अगर इनर्ट सब्सटेंस में मिक्स करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, ठीक, ये आपका क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, किसी भी इनर्ट सब्सटेंस के साथ, तो इसका जो पॉइजनस इफेक्ट क्या हो जाएगा वो घटता जाएगा। So we can say that action of poison can be altered when it is combined mechanically with the inert substance. अगर जितना ही ज्यादा किसी में वाटर मिलाएंगे, इनर्ट सब्सटेंस मिलाएंगे, तो उस चीज का जो पॉइजनस इफेक्ट उतना ही घटता जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन। हम लोग ने पॉइजन को किस मोड से एक पेशेंट के बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, this comes under the factor mode of administration of poison. तो हम लोग ने देखा कि जो आपका पॉइजन है गैस फॉर्म में भी था, लिक्विड फॉर्म में भी था, सॉलिड फॉर्म में भी था। तो अगर कोई पर्सन इनहेलेशन करता है, अगर कोई पर्सन इनहेलेशन करता है, यानी अगर उस पॉइजन को गैस और वेपर के फॉर्म में ले लेता है, तो सबसे ज्यादा आपका इसका एक्शन होता है।
उसके बाद एक्शन होता है आपका आईवी इंजेक्शन का। अगर किसी भी पॉइजन को आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में ले लिया जाए, इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में ले लिया जाए, तो उसका एक्शन होता है। उसके बाद आपका होता है आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। सबसे पहला एक्शन होता है इनहेलेशन का, उसके बाद आईवी इंजेक्शन का, आईएम इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। उसके बाद अगर किसी का सीक्वेंस है, पॉइजन को किसी वुंड पे, वुंड इज द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, एप्लीकेशन को अगर वुंड कर देंगे तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है एप्लीकेशन टू सीरस सरफेस। सीरस सरफेस पर अगर उसका हुआ तो दिस इज अ सीक्वेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर वो पर्सन इंजेक्शन करता है, यानी कि उस पॉइजन को खाता है बाय द माउथ, और उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन इनटू द नेचुरल ऑरिफिसेस, इंट्रोडक्शन इनटू द नेचुरल ऑरिफिसेस, एग्जांपल रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, और सबसे लास्ट में आता है एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन, एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन। सो इट इज द सीक्वेंस। अगर किसी भी पॉइजन को इनहेल कर लिया जाए, सांस के द्वारा ले लिया जाए, अगर पॉइजन गैस या वेपर फॉर्म में होगा तो सबसे ज्यादा एक्शन होता है। उसके बाद आईवी इंट्रावेनस लिया जाए तब उसका एक्शन होता है। उसके बाद अगर वो इंट्रामस्कुलर यानी आईएम, सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल लिया जाए तब होता है। उसके बाद अगर उस पॉइजन को किसी घाव पे लगा दिया जाए, वुंड इज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। उसके बाद आपका सीरस सरफेस पे यूज किया जाए तब आपका उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद सीरस सरफेस के बाद आपका आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन यानी कि किसी भी चीज को माउथ के थ्रू लेना। उसके बाद उस पॉइजन को अगर नेचुरल ऑरिफिस के थ्रू बॉडी में इंटर करवाया जाए, यानी रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा के थ्रू, तब उसका एक्शन होगा, और एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन। So this is the sequence of action of poison. It show how the poison should be administered, how the poison should be given to a particular person for its best action. Thank you. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।